وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج سے میں یہ ٹاپک شروع کرنے لگا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو بائی برتھ جو ہیں وہ مسلمان نہیں، انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا، تو کس چیز نے موٹیویٹ کیا انہیں کہ وہ اسلام جو ہیں وہ قبول کریں؟ اس میں ہم دیکھیں کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو. آئیے آج سے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. کچھ اس میں قدیم لوگ ہیں، کچھ جدید لوگ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اسلام کی بہت ساری خوبیوں کا جو ہے وہ پتہ چلے گا. تو امید ہے کہ آپ باقی ٹاپکس کی طرح اسے بھی بڑے توجہ سے اور دھیان سے سماعت کریں گے. کو چنتے ہیں، اس کے اندر ہمیں مختلف لوگوں کی ذہنوں کے بارے میں پتہ چلے گا، اور ہمیں اس امریکہ میں رہتے ہوئے ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے آگے ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ مختلف لوگوں سے ہمیں معلوم پڑے گا. آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں. آج میں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اٹارنی ہیں، اور داؤد ان کا نام جو ہے وہ بعد میں ہوا. African attorneys changed from Catholicism to Islam. He was searching through some old books in his library and came across Sheikh Ahmad Deedat's book, Crucifixion or Crucifixion. دونوں کے سپیلنگ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. پہلا جو ہے وہ FIXION اور دوسرا جو ہے FICTION, fiction, which shocked his faith and radically changed his concept of God and his entire life. A proud Zulu by birth and a son of the African soil, gave up the Catholic Church in which he was raised in favor of Islam. Attorney Dawood was simply looking for a law journal in a heap of old books when he stumbled upon Sheikh Deedat's book, Crucifixion or Crucifixion. The title of this little booklet immediately grabbed his attention and stuck in his mind. He placed the booklet one side and felt an importance to read it. Once he started reading, the booklet could not put it down. It had plunged him into a decisive moment of deep questioning. Clutching Sheikh Deedat's booklet under his arm, he approached his bishop. And listen what he said to Bishop. My Lord, I have a problem. Attorney said, Yes, what's your problem? He responded, I no longer believe that God is a Trinity. I said to him. He nearly collapsed. He never thought that he was going to hear those words from me because I was so firmly rooted in the church. In a firm and authoritative voice, the bishop asked him, What has happened to you? Attorney Dawood handed him Sheikh Deedat's book and asked him to read it and to get back to him with his response. 3 months passed and there was still no response from the bishop. Attorney informed the diocese management committee with what happened between him and the bishop, and they were quite shocked. The committee then decided to arrange a meeting between him and father, with whom he could discuss his questions of faith. When I met father, he had several Bibles with him. Father said that I need to understand right from the outset that the Trinity is not in the Bible and that it is the teachings of the church. At this point, Attorney Dawood
knew that it was time for him to move on and made his transition from Catholicism to Islam in 1995 at the age of 65. इसने 65 साल की उम्र में जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लिया। अहमद दीदात की जो है वो किताब को जब इसने देखा लाइब्रेरी के अंदर तो अपने बिशप से बात की कि इसका जवाब दो कि ये क्रूसिफिक्शन या क्रूसिफिक्शन ये क्या चीज है। तो बाद में बिशप ने ये तस्लीम किया कि ट्रिनिटी जो है वो इज नॉट इन द बाइबल एंड दैट इट इज द टीचिंग्स ऑफ द चर्च, ये बाइबल के अंदर नहीं है। तो इस्लाम इन्होंने कबूल किया, साउथ अफ्रीका के अंदर पढ़े लिखे आदमी, इनके लिए ये चीज बनी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इससे जरा स्टडी कीजिए, समझ में आए क्या बात है। एक और है जर्मनी से मोहतरमा अमीना, इनका बाद में नाम हुआ। कहती है कि एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, मां मैं मजीद ईसाई रहकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं मुसलमान होना चाहता हूं और तुम भी मेरी मां, तुम्हें भी मेरे साथ इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। पहली दफा मुझे महसूस हुआ कि मुझे वाकई इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मेरा ज़हन माजी की तरफ चला गया। कई साल पहले बर्लिन की मस्जिद के इमाम साहब ने मुझे इस्लाम से मुतारफ कराया था। तब ही मैं ये महसूस करने लगी थी कि इस्लाम ही मेरे लिए काबिल कबूल दीन है। 20 साल की उम्र में ही मेरी अकल ईसाइयत के अकीदा तसलीस को किसी तरह भी कबूल करने पर तैयार न थी। पहली मिसाल मैंने आपको जो ट्रिनिटी के ऊपर दी वो साउथ अफ्रीका से, ये मैं जर्मनी से दे रहा हूं आपको। यहां भी सेम मसला है कि 1 + 1 + 1 = 1, यही मसला है। फिर हकीकत में अपने माशरे के दबाव और वक्ती मजबूरियों के बायस इस हक की शहादत न दे सकी जो मुझे जरूर देनी चाहिए थी। मगर अब जब कि मेरा बेटा मुझसे इस्लाम कबूल करने को कह रहा था तो कोई वजह न थी कि मैं इस्लाम कबूल न करती। अब मैंने नए सिरे से इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया, जिसके बाद मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ मरते वक्त पादरी के सामने गुनाहों का इतराफ मुझे आखिरत की नाकामी से बचा सकता है, ना ही कोई बड़े से बड़ा पोप वहां मेरा मददगार हो सकता है। बिलाखिर मैंने क्या किया, मैंने सारे बातिल अकायद को छोड़ दिया और इस्लाम को जो है वो मैंने कबूल कर लिया। ये है जर्मनी से मोहतरमा थॉमस क्रूज, ये अमेरिका से हैं। कहती हैं कि इस्लाम किस तरह कबूल किया, वजह बताती हैं। कहती हैं कि अगर कोई मुझसे यह सवाल करे कि मैं कब मुसलमान हुई तो मेरा एक ही जवाब है कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूं। लीजिए सुन लीजिए एक और बात, मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, लेकिन सिर्फ मैं इस बात से आगाह नहीं थी, बल्कि मैं ही क्या हम सब लोग इस्लाम ही की हालत में पैदा हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जान पाते। ये जुमले सुनिए सब जितने सुन रहे हैं। क्या मैं अब यहां एक जुमला बोल दूं जो मेरे नबी ने कहा? मेरा नबी पहले से कह चुका कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, फ़अबवाहु युहविदानिही युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। फिर उसके मां बाप हैं, फ़अबवाहु यानी जो उसके सरपरस्त हैं, वो उसे मजूसी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं या और बाकी चीजें बनाएंगे। तो यही देख लीजिए, यही इसने कहा ना जुमला कि मैं ही क्या हम सब लोग इस्लाम ही की हालत में पैदा होते हैं। ये जुमला इस लड़की ने कहा। मेरा इस्लाम से पहला तारुफ उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान बहनों ने मुझे नमाज जुमुआ की दावत दी। सुन लिया, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करूं तो आपको एक जुमला मिलेगा, लेकिन ये मैं चीजें जो आपको दुनिया से बता रहा हूं आपको फौरन पता चल जाएगा कि किस चीज ने जो है ना वो असर किया। अब देख लीजिए, आप जुमला सुनिए, ये सब उन अपने बच्चों को बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे नमाज जुमुआ की दावत दी। इस नमाज के बाद चंद और बहनों ने मुझे अपने घर में खाने और तालीम के लिए बुलाना चाहा, लेकिन मैंने फौरन इनकार कर दिया। दरअसल अपनी किताबों में इस्लाम के खिलाफ मैं इतना कुछ पढ़ चुकी थी कि अपना जहन साफ करने को भी तैयार न थी, हत्ता कि तालीम की दावत कबूल करने को भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे इस्लाम का दूसरा पैगाम उस वक्त मिला जब एक टेक्निकल अदारे में ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुछ अरब मुसलमानों को करीब से देखने और इनसे रवाबित कायम करने का मौका मिला। यह पहला मौका था जब इस्लाम का तर्ज जिंदगी मुझ पर आश्कार हुआ। मैं हैरान थी वो लोग कैसे शराब और शबाब की महफिलों में जाने से इनकार कर देते हैं, किस तरह 5 मरतबा इबादत करने के लिए वक़्त निकाल लेते हैं, किस तरह पूरा माह एक भूखा प्यासा रहना इनके लिए मुमकिन कैसे होता है। ये शायद चीजें अब तो नहीं पाई जाती होंगी, मेरा ख्याल है। ये देखिए कि इस लड़की के ऊपर जिसने इस्लाम कबूल किया, ये ऐसे लोगों के साथ रहती थी कि जो क्लब नहीं जाते थे, जो शराब नहीं पीते थे। इस बात ने उसके ऊपर असर किया। और वो ऐसे लोगों के साथ रह रही थी कि जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और ऐसे लोगों के साथ रह रही थी कि जो लोग पूरा महीना रोजा रखते थे। इन 3 चीजों ने इस लड़की को इतना हैरान कर दिया कि इसने अमेरिका के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया। ख़वातीन गुफ्तगू जारी है, इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।